In this video, we will solve problems related to speed, distance and time. So our first question is, a place A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If cars travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? So here we assume the car start from A is car A. Okay, and the speed of car A and speed of car B we will assume as a two variables x and y. So we assume here let speed of car A is equal to x kilometer per hour and speed of car B is equal to y kilometer per hour. Now the total distance. Yes, what is given here? Two places are there. This is place A and place B, and both are 100 km apart from each other. In first case, both car travels in the same direction. Either they travels in this direction or in this direction. हमें assume कर लेते हैं कि इस direction में travel कर रहे हैं. तो after 5 hours they will meet each other. So after 5 years what happens? 5 hours what happens? सपोज ये सी पोजीशन है, यहाँ पे जो है दोनों कार्स जो है आपस में मिल रही है. तो दिस कार विल ट्रेवल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, मीन्स ये ए सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ये बी सी. तो इन दोनों का जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर. तो ये एक रिलेशन है कि दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल का जो डिफरेंस है दैट इज 100 किलोमीटर. ठीक है, क्योंकि आफ्टर 5 आवर दे विल मीट ईच अदर एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे अगर दोनों मिल रही है तो ये यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली और इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मीन्स इसने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करी. तो इस फर्स्ट केस में हम दोनों के टाइमिंग हम जो है यहाँ फाइंड आउट कर, सॉरी डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं. इस फर्स्ट केस में जो टाइम टेकन है, मीन्स फर्स्ट केस है इफ बोथ moves in सेम डायरेक्शन. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो टाइम टेकन कितना हो गया? टाइम टेकन मीन्स they will meet each other in 5 hours. So this is the time taken. So distance traveled by car A is equal to, distance is what? Speed into time. So speed is what? X and time is 5. So it will be 5x kilometer. And in the same way, distance traveled by car B will be what? Time is 5 and speed is y. So it is 5y kilometer. Now, according to question, इन दोनों का डिफरेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A माइनस B is what? 100 किलोमीटर. 5x minus 5y is equal to 100, means x minus y is equal to 5 to the 10, 20. This is the first relation or first equation. Now the second, if both moves towards each other, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है तो देखिए कैसे क्या होगा. ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, ये कार इधर मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी. मान लिया यहाँ मिल रही है दोनों, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस कार प्लस दिस कार इज इक्वल टू व्हाट? 100 किलोमीटर. नाउ हियर द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ कार विल बी व्हाट? 100 किलोमीटर. एंड टाइम टेकन इज गिवन. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? Both meet in 1 hour. So we'll find out the distance traveled by car A will be what? 1 into speed is x. So 1 into x is x
and distance traveled by car B will be 1 into y. And according to question, the sum of distance traveled by car A and car B will be what? 100. Means x plus y is equal to 100. This is equation 2. Now easily हम किसी भी मेथड से जो है इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं. We'll use elimination method. This is plus y and minus y. If you will add both the equation, we can eliminate y. So adding first and second, what we get? X minus y is equal to 20 and x plus y is equal to 100. Plus y minus y cancel, it is 2x is equal to 120. So x is equal to 120 by 2, that is 60. तो हमें x की वैल्यू 60 मिल गई और इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में. सो फ्रॉम सेकंड x is what? 60. So 60 plus y is equal to 100. So y is equal to 100 minus 60, that is 40. Okay, so what we get? The speed of car A is 60 km per hour and speed of car B is 40 km per hour. Hence, speed of कार A is equal to x एज्यूम किया था और x क्या मिला? 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इज 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये y एज्यूम किया था, y की वैल्यू 40 मिली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 hours and in 13 hours it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine the speed of stream and that of boat in still water. So we have to find out here the speed of stream and speed of boat in still water. So we assume let speed of boat in still water. स्टिल वाटर मीन्स वाटर विदाउट मूवमेंट, ठहरा हुआ पानी जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो, x किलोमीटर पर आवर. एंड सेकंड इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम. स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. अभी हमारा स्ट्रीम में इसकी डायरेक्शन ये है, बोट की डायरेक्शन भी ये होगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बोट की डायरेक्शन इंक्रीज हो जाएगी when boat moves in the direction of stream. ठीक है, स्ट्रीम मीन्स वाटर की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अगर बोट मूव कर रहा है तो उस बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी. और अगर वाटर इज मूविंग और स्ट्रीम इज मूविंग इन दिस साइड एंड बोट इज मूविंग इन दिस साइड, तो द स्पीड ऑफ बोट विल डिक्रीज बाय द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. स्ट्रीम की स्पीड से ये स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे. तो अप स्ट्रीम मीन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड. तो अप स्ट्रीम की बात करते हैं. अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी? हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. भाई बोट की जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड, उसमें से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस हो जाएगी. और डाउन स्ट्रीम यू राइट इन अप स्ट्रीम एंड इन डाउन स्ट्रीम. स्पीड ऑफ बोट विल बी व्हाट? x प्लस वाई किलोमीटर पर. बस हम अपना सिंपल जो है, अब फर्स्ट जो कंडीशन है इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन है उसमें लिखा है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम. हम इसको सिंपल में लिख लेते हैं कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम.
इसमें टाइमिंग कितना लगा, इसमें टाइमिंग लगा 10 आवर्स। हम किसी बात कर रहे हैं टाइम की, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वी हैव टू फाइंड आउट टाइम, सो टाइम विल बी व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम is what, distance upon, so distance is 30, speed is x minus y, here distance is 44, speed is x plus y is equal to 10 hours, this is equal to 10. This will be the first relation. Now second it is given that 40 kilometers in upstream plus 55 kilometer in downstream, and it will take what, in this condition it will take 13 hours. So this is distance, और upstream में speed थी x minus y, this is distance 55, डाउन स्ट्रीम में स्पीड थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13. ये सेकंड इक्वेशन हो गई. नाउ वी विल रिड्यूस दिस इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. क्वेश्चंस की कंडीशन से हमें ये इक्वेशंस मिल गई. अब इनको हम रिड्यूस कर लेंगे लीनियर इक्वेशन में. यहाँ कॉमन फैक्टर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है और यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है. तो हम इनको एज्यूम कर लेंगे. लेट 1 upon x minus y is equal to p and 1 upon x plus y is equal to q. अपनी इक्वेशन बन जाएगी 30p plus 44q is equal to 10 and ये बन जाएगी 40p plus 55q is equal to 30. अब इनको किसी मेथड से हम सोल्व कर लेते हैं. चलिए एलिमिनेशन से हम सोल्व करेंगे. तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से, इसको 4 से कर देते हैं और इसको 3 से, और फिर माइनस कर देंगे. तो क्या करेंगे, 4 इंटू इक्वेशन 3 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 4. सो 4 3 जा 12, 120p प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 and 117 इज इक्वल टू 40. 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 and 116, 13 3 जा 39, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया. 1 1 11 q इज इक्वल टू 1. सो q इज इक्वल टू 1 अपॉन 11. We will put the value of q 1 upon 11 in any of the equation. Okay, suppose in first, so putting q is equal to 1 upon 11 in equation third, so what we get, 30p plus 44 into 1 upon 11 is equal to 10. 11 4 जा, so 30p ये 4 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 6 हो जाएगा. 10 माइनस 4 दैट इज 6. सो p इज इक्वल टू 6 अपॉन 30, 1 अपॉन 5. नाउ व्हाट वी एज्यूम p एंड q. नाउ 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू p and this p is equal to what, 1 upon 5. So x minus y should be what, 5. This is equation 5. And 1 upon x plus y is equal to q, and q is what, 1 upon 11. Means x plus y is equal to 11. Sixth equation. फिफ्थ और सिक्स्थ को फिर एलिमिनेशन से सोल्व कर लेते हैं. So adding fifth and sixth. So what we get, x minus y is equal to 5 and x plus y is equal to 11. Y cancel, 2x is equal to 16. Then
x इज इक्वल टू 16/2 दैट इज 8. x की वैल्यू आपके पास 8 हो गई. अब पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन 6 इक्वेशन, सो फ्रॉम 6 you will get 8 plus y is equal to 11. So y is equal to 11 minus 8, that is 3. So x is what? Our speed of boat in still water. So speed of boat in still water is 8 km per hour and the speed of stream is 3 km per hour. Means hence what we get? Speed of boat in still water is equal to 8 km per hour and speed of stream is equal to 3 km per hour. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो